A very good morning to all of you students. Today we are going to revise chapter first of Behind the Fun They Had, written by Isaac Asimov. Student, in this chapter, the author tries to tell us about the classroom and schools of the future. They will be generally automated with robotic or mechanical teachers. This story describes the feelings of two students about the schools of the past. They loved the school of the past and wanted to be a part of that. They rejoice at the feeling of being taught by a human teacher. They anticipate the fun of being together with other children of their age. Now, about the characters. I am telling you the characters which is used in this chapter. So first is Margie. Margie is a girl of 11 years who wished to be a part of schools of the past. Next, Tommy. Tommy is a boy of 13 years who lives close to Margie's. Next is Margie's mother, a lady who was very disciplined and was careful about the hours of study of her daughter. Next is County Inspector. County Inspector, a round little man with a red face who comes to repair the mechanical teacher of Margie. Now student, we are going to discuss the summary of this chapter. So first point is diary entry by Margie. मार्गी अपनी डायरी में जो एंट्री करती है वो क्या है? द प्रेजेंट स्टोरी इज सेट in the future when children don't have traditional books and schools. Margie, a little girl in the story, makes a diary entry. The diary entry is Tommy found a real book. The entry reveals the date 21st May 2157, showing that this story is set much into the future. The book was very old one, just like the one that her grandfather had in his time as a student. Its pages were yellow and she found it funny to read the words that were not moving like that on a computer screen. जो डायरी एंट्री है, जो क्या लिखती है वो डायरी में मार्गी, द प्रेजेंट स्टोरी इज सेट, यह जो स्टोरी है, यह जो चैप्टर है, यह सेट है इन द फ्यूचर पर व्हेन चिल्ड्रन डोंट हैव ट्रेडिशनल बुक्स. जो बच्चे हैं उनके पास जब वो ट्रेडिशनल बुक्स नहीं होती और ना ही उनके पास स्कूल होता है. मार्गी जो कि एक लिटिल गर्ल है इस स्टोरी में मेक्स अ डायरी एंट्री, वो डायरी फिल करती है और लिखती है टॉमी फाउंड अ रियल बुक, कि टॉमी को एक वास्तविक बुक मिलती है. रियल मीन्स जो पास्ट में जो बुक्स यूज़ करते हैं. द एंट्री रिवेल्स, एंट्री का जो टाइम है, जो डेट है, जो वो मेंशन करती है वो क्या है? 21 मई 2157, शोइंग दैट, यह शो करते हुए कि जो स्टोरी है वो बहुत ज़्यादा किस पर बेस है? फ्यूचर पर. जो बुक है वो बहुत ज़्यादा, जो उन्हें बुक मिलती है वो बहुत ज़्यादा पुरानी होती है, जो कि उसके जो ग्रैंडफादर हैं उसके टाइम में जब वो एक स्टूडेंट थे उसके टाइम में जब वो बुक यूज़ करते थे वो बुक मिलती है मार्गी और टॉमी को. इस पेजेस, इसके जो पेजेस हैं जब वो फ्यूचर में है तो नेचुरली उसके पेजेस कैसे हो गए हैं? येलो. और वो पाती है कि जो रीड से करती है जब वर्ड्स को तो वो वर्ड्स उसे फ़नी लगते हैं क्योंकि वो मूव नहीं करते, क्योंकि वो अब जो मार्गी है वो कंप्यूटर स्क्रीन पर पढ़ती है. कंप्यूटर स्क्रीन पर जो वर्ड होते हैं वो मूव करते हैं, बट जो बुक है, जो पुराने टाइम की जो बुक है वो उसके जो वर्ड्स हैं वो एज इट इज़ वहीं रहते हैं. वो लास्ट पेज भी पर पहुंच जाते हैं, लास्ट पेज टर्न करते हैं तो भी वो वर्ड्स वहीं के वहीं रहते हैं, इसलिए वो उन वर्ड्स को देखकर हंसती है. नेक्स्ट इज़ फीलिंग अबाउट द बुक, वो क्या फील करती है उस बुक के बारे में. व्हेन टॉमी हैड द बुक इन हिज हैंड ही कॉल्ड इट अ वेस्ट बिकॉज आफ्टर वन टाइम रीडिंग इट वुड बी थ्रोन अवे. द सेम फीलिंग वॉज विद मार्गी टू. Tommy found that book in the attic of his house.
and that book was about a school. Margie hated her school and her mechanical teacher a lot. Her teacher was not a living being, he was an image that flashes on her screen in her study room. He gave her test after test in geography and she was not doing well. Her failure in geography had invited an inspector who tried to trace out the problem. So her mother had asked the county inspector to come and find what was wrong. When टॉमी had the book in his hand, जब टॉमी अपने हैंड में बुक लेता है, he called it a waste, तो वह इसे वेस्ट बताता है. बिकॉज आफ्टर वन टाइम रीडिंग, क्योंकि एक समय पढ़ने के बाद में वो उसे फेंक सकता था. यही जो फीलिंग है ये मार्गी के साथ भी है. टॉमी ने पाया कि जो बुक है इन द एटिक ऑफ हिज हाउस, वो उसके स्टोर रूम में रखी हुई थी. एंड दैट बुक वॉज अबाउट अ स्कूल, और यह बुक किसके बारे में थी? एक स्कूल के बारे में. मार्गी हेटेड हर स्कूल, मार्गी हेट करती है अपने स्कूल से और अपने मैकेनिकल टीचर से. हर टीचर वॉज नॉट ए लिविंग बींग, उसके जो टीचर है वो एक लिविंग बींग नहीं है, मीन्स एक ह्यूमन बींग नहीं है. इट वॉज ए कंप्यूटर स्क्रीन. ही वॉज एन इमेज दैट फ्लैशेज ऑन हर स्क्रीन इन हर स्टडी रूम, और वो इमेज करती है. ही वॉज एन इमेज, यह एक इमेज है जो कि फ्लैश करता है स्क्रीन को उसके स्टडी रूम में. ही गेव हर टेस्ट आफ्टर टेस्ट, और यह उसे टेस्ट के बाद में टेस्ट देता है ज्योग्राफी का, बट वो ठीक से नहीं कर पाती. हर फेलर इन ज्योग्राफी, जब वो फेल होती है ज्योग्राफी में, उसका जो रीजन है वो क्या है? हैड इन्वाइटेड एन इंस्पेक्टर, तो वो एक इंस्पेक्टर मीन्स जो उसे ठीक करने वाला जो व्यक्ति है कंप्यूटर को, उसे बुलाया जाता है और वो कोशिश करता है उसकी प्रॉब्लम को ट्रेस करने की. इसलिए उसकी मदर बुलवाती है काउंटी इंस्पेक्टर को कि वो आए और जहाँ पर जो गलती है वो उसे ढूंढे. नेक्स्ट इज द अराइवल ऑफ द काउंटी इंस्पेक्टर. द काउंटी इंस्पेक्टर वॉज अ राउंड लिटिल मैन विद अ रेड फेस. जो काउंटी इंस्पेक्टर है वॉज अ राउंड लिटिल मैन है विद अ रेड फेस. मार्गी हैड थॉट दैट ही वुड टेक हर मैकेनिकल टीचर अवे completely, but it was not so. The inspector set the teacher right within an hour or so. He told her mother that nothing was wrong with the girl, rather the screen was too fast for the girl and therefore Margie was having troubles. Now it had been slowed down so that she would be okay with its level. अब काउंटी इंस्पेक्टर को बुलवाया जाता है. जो काउंटी इंस्पेक्टर है वो एक राउंड लिटिल मैन है, उसका रेड फेस है. मार्गी हैड थॉट, वो सोचती थी, दैट ही वुड टेक हर मैकेनिकल टीचर, कि वो उसका जो कंप्यूटर स्क्रीन है वो उसे ले जाए, बट इट वॉज नॉट सो, किंतु ऐसा नहीं हुआ. द इंस्पेक्टर सेट द टीचर राइट. जो इंस्पेक्टर था मीन्स जो व्यक्ति था उसने जो कंप्यूटर टीचर था उसे सही कर दिया 1 घंटे में. ही टोल्ड हर, और उसने उसकी मदर को बताया, दैट नथिंग वॉज रॉन्ग विद द गर्ल, कि उस लड़की के साथ ऐसा मत सही नहीं है. द स्क्रीन वॉज टू फास्ट, उस लड़की की गलती नहीं है ज्योग्राफी सेक्टर में, क्योंकि जो स्क्रीन है वो खुद ही इतनी ज़्यादा जलती है. एंड देयरफॉर, इसलिए जो मार्गी है उसे परेशानी का सामना करना पड़ता है. नाउ इट हैड बीन स्लोड, अब उसने इसे स्लो कर दिया है और यह अब उसके लेवल में है. नेक्स्ट, द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल. On reading that book, Tommy had a discussion about the school with Margie. The old kind of schools were a building common to all, and with human teachers who would teach all the boys and girls the same thing if they were of the same age. This point is a very important point, so listen this point very carefully, students. On reading that book, इस बुक को पढ़ने के बाद टॉमी हैड अ डिस्कशन, वो एक निष्कर्ष पर पहुंचता है अबाउट द स्कूल के बारे में विद मार्गी, मार्गी के साथ. वो बताता है टॉमी कि जो ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल्स होते थे वो एक बिल्डिंग होती थी जिसमें जो सभी ह्यूमन टीचर्स थे वो जाते थे,
सभी बच्चे वहाँ आते थे। उन सभी बॉयज़ और गर्ल्स को सेम चीज़ें पढ़ाई जाती थी यदि वो सेम एज के होते थे तो। ही गेव दैम टेस्ट एज वेल एज होमवर्क। वो जो टीचर्स होते थे वो उन्हें टेस्ट देते थे और फिर होमवर्क भी। मार्गी वॉन्टेड टू नो मोर अबाउट दोज काइंड्स ऑफ फ़नी स्कूल्स। और मार्गी चाहती थी इस तरीके के जो फ़नी स्कूल्स थे उनके बारे में जानना। बट इट वॉज़ टाइम फॉर हर। किंतु अब उसका टाइम हो चुका था उसके स्कूल का। इट वॉज़ टाइम फॉर टॉमी। और अब टॉमी का भी टाइम हो गया था इसके स्कूल का। एंड बोथ ऑफ देम। और दोनों ने डिसाइड किया कि वो उस बुक को बाद में पढ़ेंगे। नेक्स्ट, मार्गीज स्कूल रूम। मार्गी का जो स्कूल रूम था वो क्या था? दिस पॉइंट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट पॉइंट। मार्गीज स्कूल रूम वॉज नेक्स्ट टू हर बेडरूम वेयर द मैकेनिकल टीचर वॉज ऑन एंड वेटिंग फॉर मार्गी। हर स्कूल वॉज ओपन एवरी डे एक्सेप्ट सैटरडे एंड संडे। Margie's mother believed that the girls learn better if they do it regularly. The mechanical teacher, means the screen lit up and started, was going to teach lesson on arithmetic. It was about the addition of proper fractions. Margie had no interest in it. Margie had to put yesterday's homework in the proper slot too. The mechanical teacher never forgot to ask for the homework. नेक्स्ट, मार्गी का जो स्कूल रूम था वॉज नेक्स्ट टू हर बेडरूम। वो उसके बेडरूम के साथ वाला रूम था। वेयर दी मैकेनिकल टीचर, जहाँ पर जो कंप्यूटर जो स्क्रीन थी वो ऑन थी और वो वेट कर रही थी मार्गी का। उसका जो स्कूल था वो डेली ओपन होता था बजाय के सैटरडे और संडे। मार्गी की जो मदर थी वो विश्वास करती थी कि जो लड़कियां हैं वो अच्छा सीखती हैं यदि उन्हें रेगुलर क्लास दी जाए। जो मैकेनिकल टीचर है वो ऑन होता है और स्टार्ट होता है। वॉज गोइंग टू टीच लेसन, और वो लेसन पढ़ाना स्टार्ट करता है अर्थमेटिक का। इट वॉज अबाउट द एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शंस, और ये एडिशन हैं प्रॉपर फ्रैक्शंस की। मार्गी हैड नो इंटरेस्ट इन इट। मार्गी को इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। मार्गी अपना जो कल का जो होमवर्क है वो प्रॉपर स्लॉट मीन्स खाली स्पेस में रखती है। मैकेनिकल टीचर नेवर फॉरगॉट, वो कभी नहीं भूलता होमवर्क के लिए पूछना। नेक्स्ट, मार्गी बीइंग नॉस्टैल्जिक। मार्गी वॉज सिटिंग इन फ्रंट ऑफ हर मैकेनिकल टीचर बट she was thinking of the good old days when the kids had a common time and place to study. She was also thinking of the human teacher that used to teach them. She was thinking of the fun they had at the school. जो मार्गी है वो मैकेनिकल टीचर के सामने बैठी है किंतु अभी भी वो अपने जो अच्छे जो पुराने जो दिन हैं उनके बारे में सोचती है, जब जो बच्चे हैं सभी के पास कॉमन टाइम था, प्लेस था स्टडी के लिए। शी वॉज ऑल्सो थिंकिंग ऑफ, और वो सोचती है ह्यूमन टीचर के बारे में जो उन्हें पढ़ाते थे। शी वॉज थिंकिंग ऑफ द फन दे हैड एट द स्कूल, और वो सोचती है उस फन के बारे में जो वो रखते थे स्कूल में। दे मीन्स हेयर द ओल्ड काइंड ऑफ स्टूडेंट्स। नाउ आई एम टेलिंग यू सम sentences which are highlight this chapter. So first is, in her diary, Margie wrote about Tommy finding a new book on the schools of the old days. Second, the old kinds of proper books, paper books used to have pages unlike the e-books. Next, Tommy and Margie considered such books to be nothing more than a waste as they were worthless after the first reading. Next, Margie hated her mechanical teacher a lot because he was giving her test after test and she was not doing well. Next, the county inspector came to repair the mechanical teacher of Margie so that its level could match the level of Margie. Next, Margie was disappointed when the mechanical teacher was not taken away by the county inspector completely. Next, Tommy and Margie both discussed the old schools and the teachers that were human beings. Next,
Tommy and Margie went to their school to attend their lectures. The mechanical teacher flashed at their school time every day except Saturday and Sunday. Next, Margie, with a heavy heart, had to put the homework in the proper slot, which she hated. Next, even being in the classroom, she was thinking of the old kind of schools with the kids and the human teachers. Next, the mechanical teacher was on, but Margie was engrossed in thinking of the fun they had in old days. So, students, I hope you must have understood this chapter, the fun they had. So, students, watch and listen and understand this chapter very carefully. Thank you so much.